دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہماری محبت کا پیغام ہے اور ہماری زندگی کی سچائی ہے۔ یہ ہے کربلا کی کہانی، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی بے مثال قربانی کی کہانی۔ بات شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ ان کے بعد خلافت کا مسئلہ آیا۔ حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، لیکن یہ وقت بہت مشکل کا تھا۔ امید گھرانے کے لوگ جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو نہیں مانا۔ حضرت علی کے زمانے میں کئی جنگ ہوئی، جمل کی جنگ، صفین کی جنگ، یہ سب فتنے تھے جو مسلم امت میں آ گئے تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن خلیفہ بنے، لیکن معاویہ سے صلح کر کے انہوں نے خلافت چھوڑ دی۔ اس کے بعد معاویہ خلیفہ بن گئے اور امید خلافت کی شروعات ہوئی۔ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا وارث بنایا۔ یہیں سے اصلی مسئلہ شروع ہوا۔ یزید ایک ایسا آدمی تھا جو شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا اور اسلام کے اصولوں کے خلاف چلتا تھا۔ وہ خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ معاویہ کی موت کے بعد یزید نے خود کو خلیفہ گھوشت کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے حضرت امام حسین سے بیعت، وفاداری کی قسم مانگی، لیکن حضرت امام حسین نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ امام حسین نے کہا، میں ایسے ویکتی کی بیعت نہیں کر سکتا جو اسلام کے اصولوں کے خلاف چلتا ہے۔ یزید جیسا ویکتی خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ یزید کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے طے کیا کہ وہ امام حسین کو زبردستی بیعت کرنے پر مجبور کرے گا یا پھر انہیں ختم کر دے گا۔ مدینہ شریف میں حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ یزید کے گرگے امام حسین پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ ایسے میں امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مکہ شریف چلے گئے۔ مکہ میں امام حسین کچھ مہینے رہے۔ اس دوران کوفے کے لوگوں نے انہیں کئی خط بھیجے۔ کوفہ عراق کا ایک بڑا شہر تھا جہاں حضرت علی کا بہت پربھاؤ تھا۔ کوفے کے لوگوں نے امام حسین سے کہا، حضور آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے امام بنیے۔ ہزاروں لوگوں نے ایسے خط بھیجے۔ امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کی استھتی کا جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ہزاروں لوگ امام حسین کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں، لیکن یزید کو اس بات کی خبر مل گئی۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد ایک بہت کرور آدمی تھا۔ اس نے پہنچتے ہی کوفے میں آتنک پھیلا دیا۔ جو لوگ امام حسین کا ساتھ دینے کی بات کر رہے تھے انہیں دھمکایا جانے لگا۔ کچھ کو گرفتار کر لیا گیا، کچھ کو مار دیا گیا۔ ڈر کے مارے لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ مسلم بن عقیل اکیلے پڑ گئے۔ انہوں نے ایک انتم کوشش کی، لیکن جب وہ مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ ساتھ دینے والے سب لوگ غائب ہو گئے ہیں۔ اکیلے پڑنے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا پورا خاندان تھا، ان کی بیویاں، بچے، بھائی بہن، رشتہ دار، کل ملا کر 72 لوگ تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جب وہ راستے میں تھے تو انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ امام حسین کو سمجھ آ گیا کہ کوفے کے لوگوں نے دھوکہ دے دیا ہے، لیکن اب واپس جانا بھی مشکل تھا کیونکہ یزید کے سپاہی ہر طرف سے انہیں گھیر رہے تھے۔ مکہ واپس جانے کا راستہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ امام حسین کو احساس ہو گیا کہ یہ ایک جال ہے اور انہیں مارنے کی سازش رچی گئی ہے۔ کربلا کے میدان میں پہنچ کر امام حسین نے اپنا کیمپ لگایا۔ یہ دریائے فرات کے کنارے ایک جگہ تھی۔ یہاں یزید کی فوج بھی آ پہنچی۔ حر بن یزید ریاحی کے کمانڈ میں 1000 سپاہی پہلے آئے، پھر عمر بن سعد کے کمانڈ میں اور بھی فوج آتی رہی۔ کچھ دنوں میں یزید کی فوج کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ ادھر امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ عمر بن سعد نے امام حسین کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔
लेकिन इमाम हुसैन ने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कभी भी यजीद जैसे जालिम की बैत नहीं करूंगा। इस्लाम को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। इमाम हुसैन ने दुश्मन की फौज के सामने तकरीर की। उन्होंने कहा, ए लोगो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूं। मेरी माँ फातिमा रसूल अल्लाह की बेटी है। मेरे नाना ने मुझे प्यार से पाला है। क्या तुम्हें ये याद नहीं कि नाना जान मुझे और मेरे भाई हसन को अपने कंधों पर बिठाकर घुमाते थे? क्या तुम्हें वो हदीस याद नहीं जिसमें नाना जान ने कहा था कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहता हूं, मैं यजीद जैसे फासिक आदमी की बैत नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं इस्लाम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। यजीद की फौज में से कुछ लोग इमाम हुसैन की बात सुनकर रोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हुर बिन यजीद रियाही, जो पहले यजीद का कमांडर था, वो इमाम हुसैन के पास आकर माफी मांगी और उनका साथ दे दिया। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा, कल की रात अंधेरी है, तुम लोग चाहो तो यहां से चले जा सकते हो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। लेकिन उनके सभी साथियों ने कहा, हुजूर, हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमारी जान आपके लिए कुर्बान है। अब्बास, जो इमाम हुसैन के भाई थे, उन्होंने कहा, भाई, आपके रहते मैं कैसे जा सकता हूं? मैं आपके साथ हूं, जीने में भी और मरने में भी। उनके बेटे अली अकबर ने कहा, अब्बा जान, आपके साथ मरना मेरे लिए सबसे बड़ा फक्र है। उनके 18 साल के बेटे अली असगर भी साथ थे। सभी ने कहा कि वो इमाम हुसैन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उधर यजीद की फौज ने करबला में पानी बंद कर दिया था। दरियाए फुरात से पानी लेने नहीं दिया जा रहा था। 3 दिन से प्यास के मारे बच्चे तड़प रहे थे। छोटे बच्चे रो रहे थे कि उन्हें पानी चाहिए। 10 मुहर्रम का दिन आया। इसे आशूरा का दिन कहते हैं। इस दिन जंग शुरू हुई। सुबह नमाज के बाद इमाम हुसैन ने अपने साथियों को तैयार किया। उन्होंने आखिरी बार दुश्मनों से कहा कि वो अपनी गलती समझ जाएं, लेकिन यजीद की फौज ने जंग शुरू कर दी। पहले हुर बिन यजीद रियाही मैदान में आए, जो पहले यजीद के कमांडर थे, लेकिन बाद में इमाम हुसैन का साथ दे दिया था। वो बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए। फिर एक एक करके इमाम हुसैन के साथी मैदान में आए। सबसे पहले उनके दोस्त और साथी गए, फिर रिश्तेदार गए। हबीब बिन मुजाहिर एक बुजुर्ग साहब थे, जो इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त थे। वो भी बहादुरी से लड़े और शहीद हुए। मुस्लिम बिन औसजा भी शहीद हुए। एक एक करके सभी साथी शहीद होते गए। फिर इमाम हुसैन के रिश्तेदारों की बारी आई। उनके भाई बंद, भतीजे एक एक करके मैदान में गए। कासिम बिन हसन, जो इमाम हुसैन के भतीजे थे, वो भी शहीद हुए। अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम भी शहीद हुए। दोपहर के वक्त अली अकबर की बारी आई। ये इमाम हुसैन के बड़े बेटे थे। वो देखने में बिल्कुल अपने नाना रसूल अल्लाह की तरह लगते थे। अली अकबर ने अपने वालिद से इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने उन्हें सीने से लगाया और दुआ दी। अली अकबर मैदान में गए और बहादुरी से लड़े। वो कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन आखिर में एक तीर उनके गले में लगा और वो शहीद हो गए। इमाम हुसैन दौड़कर अपने बेटे के पास गए। अली अकबर ने आखिरी सांस में कहा, अब्बा जान, आप पर मेरा सलाम, और इतना कहकर दम तोड़ दिया। इमाम हुसैन का दिल टूट गया। वो रोते हुए अपने बेटे को कैंप में लेकर आए। वहां औरतें और बच्चे भी रो रहे थे। इसके बाद अब्बास की बारी आई। वो इमाम हुसैन के सगे भाई थे। उन्हें कैंप से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी, जो प्यास के मारे तड़प रहे थे। अब्बास ने इमाम हुसैन से कहा, भाई, मैं बच्चों के लिए पानी लेकर आता हूं। वो एक मश्क पानी का बर्तन लेकर दरियाए फुरात की तरफ गए। रास्ते में हजारों दुश्मन थे, लेकिन वो बहादुरी से लड़ते हुए दरिया तक पहुंचे। जब वो पानी भर रहे थे तो उन्हें बहुत प्यास लगी। 3 दिन से उन्होंने भी पानी नहीं पिया था, लेकिन जब वो पानी पीने लगे तो उन्हें ख्याल आया कि कैंप में बच्चे प्यासे हैं। उन्होंने कहा, मैं कैसे पानी पी सकता हूं जब मेरे भाई के बच्चे प्यासे हैं, और पानी फेंक दिया। वापसी में दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया।
एक तीर उनके दाहिने हाथ में लगा, वो कट गया। फिर बाएं हाथ में तीर लगा, वो भी कट गया। लेकिन फिर भी वो मश्क को दांतों से पकड़कर कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक तीर मश्क में लगा और सारा पानी बह गया। इसके बाद एक और तीर उनकी आंख में लगा और वो शहीद हो गए। इमाम हुसैन को जब अब्बास की शहादत की खबर मिली तो वो बेहद गमगीन हुए। उन्होंने कहा, अब मेरी कमर टूट गई। अब इमाम हुसैन अकेले रह गए थे। उनके सभी साथी, रिश्तेदार, बेटे शहीद हो चुके थे। सिर्फ उनका 6 महीने का बेटा अली असगर बचा था। इमाम हुसैन ने अली असगर को गोद में उठाया और दुश्मनों के सामने पेश किया। उन्होंने कहा, ये मासूम बच्चा है, इसका क्या गुनाह है? अगर तुम मुझसे नाराज हो तो इस बच्चे को पानी तो दे दो। लेकिन यजीद की फौज में से हुरमुला नाम के एक शख्स ने तीर चलाया जो छोटे बच्चे के गले में जा लगा। अली असगर इमाम हुसैन की बाहों में शहीद हो गया। इमाम हुसैन का दिल टूट गया। वो अपने मासूम बेटे का खून अपनी हथेली में लेकर आसमान की तरफ फेंका और कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहा कि इन लोगों ने मेरे मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अब इमाम हुसैन बिल्कुल अकेले रह गए थे। वो अपने खैमे में गए और नमाज पढ़ी। फिर अपनी बहन ज़ैनब और बाकी औरतों से इजाजत ली। उन्होंने कहा, अब मेरी बारी है, मैं भी इन सब के साथ जा रहा हूं। औरतें रो रही थीं। ज़ैनब ने कहा, भाई अब हमारा क्या होगा? इमाम हुसैन ने कहा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज है, तुम सब्र करना। इसके बाद इमाम हुसैन मैदान में आए। वो अकेले थे और सामने 30,000 की फौज थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने आखिरी बार दुश्मनों से कहा, तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूं। मेरे नाना ने इस्लाम के लिए कितनी मेहनत की है। आज तुम उन्हीं के नवासे को मार रहे हो। अल्लाह के यहां तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन अकेले होकर भी बहुत बहादुरी से लड़े। वो कई दुश्मनों को मार गिराते रहे, लेकिन वो एक थे और दुश्मन हजारों में थे। धीरे धीरे उनके बदन पर तीरों और तलवारों के घाव बढ़ते गए। वो प्यास के मारे भी बहुत परेशान थे। 3 दिन से पानी नहीं पिया था। आखिर में वो अपने घोड़े से गिर पड़े। उनका चेहरा जमीन पर लग गया। वो बहुत जख्मी हो चुके थे, लेकिन अभी भी जिंदा थे। इब्न मुल्जम नाम के एक शख्स ने उनकी तरफ तलवार उठाई, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वो रसूल अल्लाह के नवासे को मारने से डर रहा था। तभी शिमर नाम का एक बदमाश आया। उसने कहा, तुम क्यों झिझक रहे हो? और उसने इमाम हुसैन का सर काट दिया। जब इमाम हुसैन का सर कटा तो कहते हैं कि आसमान से खून की बारिश हुई। जमीन हिल गई। सूरज का रंग लाल हो गया। यजीद के सिपाहियों ने इमाम हुसैन के पाक बदन को घोड़ों से कुचलवाया। यहां तक कि उन्होंने सभी शहीदों के सरों को काटकर लंबी लकड़ियों पर लगा दिया। इसके बाद उन्होंने कैंप पर हमला किया। औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। उनके खैमे जला दिए। औरतों से उनके गहने छीन लिए। ज़ैनब और बाकी औरतों को रस्सियों से बांधकर कैदी बनाया गया। वो सब रो रहे थे। उन्होंने अपने प्यारे लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। सबसे दुखदाई बात यह थी कि इमाम हुसैन का छोटा बेटा अली जैनुल आबिदीन बीमार था। वो बुखार में था, इसीलिए जंग में नहीं जा सका था। उसे भी कैदी बना लिया गया। यजीद के सिपाही शहीदों के सरों को लेकर पहले कूफे गए। वहां के गवर्नर इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन का सर देखकर खुशी मनाई। उसने एक छड़ी से इमाम हुसैन के मुबारक होठों को मारा। तभी एक बुजुर्ग साहब अनस बिन मालिक खड़े हुए और कहा, रुक जा, इन होठों को मैंने रसूल अल्लाह को चूमते देखा है। और वो रोने लगे। कूफे में औरतों और बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। लोग उन्हें तमाशे की तरह देखते थे। कूफे से यजीद के सिपाही शहीदों के सरों और कैदियों को लेकर दमिश्क शाम चले गए, जहां यजीद का दरबार था। दमिश्क पहुंचकर यजीद ने अपने दरबार में इमाम हुसैन का सर मंगवाया। जब वो सोने की तश्तरी में इमाम हुसैन का सर लाया गया तो यजीद बहुत खुश हुआ। उसने अपनी छड़ी से इमाम हुसैन के चेहरे और दांतों को मारना शुरू किया। तभी दरबार में एक बुजुर्ग सहाबी अब्बू बरजा असलमी खड़े हुए। उन्होंने कहा, यजीद, तू क्या कर रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रसूल अल्लाह इन्हीं होठों को चूमते थे, इन्हीं दांतों को प्यार करते थे।
तू इन पर छड़ी उठा रहा है? यजीद ने अब्बू बरजा को चुप करा दिया और कहा, बूढ़े, अपनी बात अपने तक रख। फिर यजीद ने ज़ैनब और बाकी कैदी औरतों को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब औरतें दरबार में आईं, तो लोग उन्हें घूर रहे थे। ज़ैनब का चेहरा नकाब से ढका था, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यजीद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो कैसे अल्लाह ने मुझे फतह दी है। तभी ज़ैनब खड़ी हुई और उन्होंने ऐसी तकरीर की जो इतिहास में मशहूर है। उन्होंने कहा, ऐ यजीद, तू समझता है कि तूने हमें जलील किया है? तू गलत समझ रहा है। अल्लाह की कसम, तूने सिर्फ अपने आप को जलील किया है। तू रसूल अल्लाह के खानदान से बदला ले रहा है, लेकिन तुझे पता है कि अल्लाह के यहां तेरा क्या हश्र होगा। तूने आज एक गुनाह किया है जिसकी वजह से कयामत तक तेरा नाम बदनाम रहेगा। तूने रसूल अल्लाह के नवासे को मारा है, लेकिन याद रख, हुसैन मरकर भी जिंदा है और तू जिंदा होकर भी मरा हुआ है। ज़ैनब की ये तकरीर सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। यजीद को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन बाद यजीद को डर लगने लगा कि कहीं लोग बगावत न कर दें। उसने कैदियों को वापस मदीना भेजने का फैसला किया। जब काफिला मदीना पहुंचा तो पूरा शहर मातम में डूब गया। लोग रो रहे थे। रसूल अल्लाह के नवासे की शहादत की खबर सुनकर हर आंख में आंसू थे। हजरत आयशा और बाकी उम्माहतुल मोमिनीन, रसूल अल्लाह की बीवियां भी बहुत रोई। उन्होंने कहा, हाय, अगर रसूल अल्लाह आज जिंदा होते तो अपने प्यारे नवासे के साथ ये सब देखकर कितना दुख होता। करबला की ये वाकया सिर्फ 61 हिजरी में हुई एक जंग नहीं थी। ये हक्का और बातिल के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच, इस्लाम और जुल्म के बीच एक फैसला कुन लड़ाई थी। इमाम हुसैन ने अपनी जान देकर दुनिया को दिखाया कि जालिम के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उन्होंने ये सिखाया कि मौत कबूल करना बेहतर है, लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए। करबला के बाद पूरी इस्लामी दुनिया में हलचल मच गई। लोगों को एहसास हुआ कि यजीद कितना बड़ा गुनहगार है। कई जगह यजीद के खिलाफ बगावत हुई। मदीना में अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने यजीद के खिलाफ बगावत कर दी। मक्का और मदीना से यजीद की हुकूमत खत्म हो गई। तौवाबीन, तौबा करने वाले, नाम का एक गुट बना, जिसमें वो लोग शामिल थे जो पहले इमाम हुसैन का साथ नहीं दे सके थे। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है और अब हमें इसका कफ्फारा देना चाहिए। मुख्तार सकफी ने इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेने का बीड़ा उठाया। उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मारा, जिसने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कराया था। शिमर को भी मारा, जिसने इमाम हुसैन का सर काटा था। हुरमुला को भी मारा, जिसने अली असगर को तीर मारा था। इस तरह से करबला के ज्यादातर गुनहगारों को सजा मिली। यजीद खुद भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। 3 साल बाद 64 हिजरी में उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि मरते वक्त वो बहुत परेशान था और कहता रहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। करबला की शहादत के बाद इमाम हुसैन का नाम अमर हो गया। दुनिया भर के मुसलमान हर साल मुहर्रम के महीने में उनकी याद मनाते हैं। हर साल 10 मुहर्रम को आशूरा का दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग रोजा रखते हैं, मातम करते हैं, इमाम हुसैन की शहादत की कहानी सुनते और सुनाते हैं। कई जगह ताजिया निकाले जाते हैं जो करबला में इमाम हुसैन के मजार की नकल होते हैं। लोग हाय हुसैन कहकर मातम करते हैं। शिया मुसलमान खासकर इस दिन को बड़े गम के साथ मनाते हैं। वो काला कपड़ा पहनते हैं, छाती पीटते हैं और रोते रहते हैं। उनके लिए ये दिन सबसे बड़े गम का दिन है। इराक में आज भी करबला शहर है जहां इमाम हुसैन का मजार है। हर साल लाखों लोग ज़ियारत के लिए वहां जाते हैं। खासकर अरबईन के दिन जो आशूरा के 40 दिन बाद आता है, करोड़ों लोग पैदल चलकर करबला जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा मानी जाती है। लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर इमाम हुसैन के मजार पर हाजिरी देते हैं। करबला की शहादत ने पूरी इस्लामी तारीख को बदल दिया। इससे पहले मुसलमान सिर्फ जीतने वाली जंगों के बारे में जानते थे। करबला ने सिखाया कि कभी कभी हारना भी जीतना होता है। इमाम हुसैन जंग हार गए, लेकिन उनका मकसद जीत गया।
उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बुराई के आगे झुकने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। आज 1400 साल बाद भी दुनिया भर में लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनकी कुर्बानी को सलाम करते हैं, लेकिन यजीद का नाम आज भी बुराई की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। करबला की इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला सबक यह है कि हक की खातिर कुर्बानी देना पड़ती है। इमाम हुसैन ने अपनी जान, अपने बच्चों की जान, अपने साथियों की जान, सब कुछ इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया। दूसरा सबक यह है कि जालिम के आगे कभी सर नहीं झुकाना चाहिए, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इमाम हुसैन के सामने 30,000 की फौज थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरा सबक यह है कि कभी कभी हारना भी जीतना होता है। इमाम हुसैन जंग हार गए, लेकिन इतिहास में जीत गए। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और यजीद को कोसते हैं। चौथा सबक यह है कि सच्चाई कभी नहीं मरती। इमाम हुसैन को मार दिया गया, लेकिन उनका पैगाम आज भी जिंदा है, उनकी आवाज आज भी गूंजती है। पांचवा सबक यह है कि खानदानी और रिश्तेदारी के बंधन कितने मजबूत होते हैं। इमाम हुसैन के साथ उनका पूरा खानदान था, किसी ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। छठा सबक यह है कि औरतें भी बहुत बहादुर होती हैं। ज़ैनब ने यजीद के दरबार में जो तकरीर की, वो इतिहास की सबसे बहादुरी भरी तकरीर मानी जाती है। सातवां सबक यह है कि बच्चे भी बड़ों से कम नहीं होते। अली अकबर, कासिम जैसे नौजवानों ने अपनी जान देकर दिखाया कि हक की खातिर उम्र कोई मायने नहीं रखती। आठवां सबक यह है कि दोस्ती और वफादारी की कितनी अहमियत है। इमाम हुसैन के साथी, जो उनके रिश्तेदार नहीं थे, फिर भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। नौवां सबक यह है कि इंसान को अपने उसूलों पर कायम रहना चाहिए। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करके अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 10वां सबक यह है कि अल्लाह जालिमों को कभी माफ नहीं करता। यजीद और उसके साथियों का बुरा अंजाम हुआ। करबला की ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन नहीं है, ये आज भी हमारी जिंदगी के लिए एक रहनुमाई है। जब भी हमारे ऊपर कोई जुल्म होता है, जब भी हमसे कहा जाता है कि गलत बात को मान लो, तो हमें इमाम हुसैन की याद आनी चाहिए। आज के जमाने में भी कई यजीद हैं जो लोगों पर जुल्म करते हैं। कई लोग हैं जो ताकत के बल पर दूसरों को दबाते हैं। ऐसे में हमें इमाम हुसैन से सीख लेनी चाहिए कि गलत के आगे कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। करबला की कहानी सिखाती है कि कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती। इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी ने इस्लाम को बचाया। अगर वो यजीद की बैत कर देते तो इस्लाम बिगड़ जाता। ये कहानी ये भी सिखाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असली चरित्र पता चलता है। कुछ लोग मुश्किल के वक्त साथ छोड़ देते हैं, जैसे कूफे के लोगों ने किया, लेकिन कुछ लोग मरते दम तक साथ देते हैं, जैसे इमाम हुसैन के साथियों ने किया। करबला की कहानी औरतों की बहादुरी की भी मिसाल है। ज़ैनब ने दिखाया कि औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने यजीद के दरबार में डरे बिना सच बोला। उम्मे लैला, जो हबीब बिन मुजाहिर की मां थी, उन्होंने अपने बेटे को इमाम हुसैन के साथ भेजा और कहा, अगर तुमने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। करबला की इस कहानी में प्यास का भी बड़ा रोल है। यजीद की फौज ने पानी बंद कर दिया था। यह दिखाता है कि जालिम कितने नीच हो सकते हैं। छोटे बच्चों को भी पानी नहीं दिया। हजरत अब्बास की कहानी तो प्यास की सबसे बड़ी मिसाल है। वो खुद प्यासे थे, लेकिन जब पानी सामने था तो उन्होंने सोचा कि कैंप में बच्चे प्यासे हैं, मैं कैसे पी सकता हूं, और उन्होंने पानी फेंक दिया। यह दिखाता है कि सच्चा प्यार और त्याग क्या होता है। आज के जमाने में लोग अपने लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हजरत अब्बास ने दूसरों के लिए अपनी प्यास तक कुर्बान कर दी। करबला की कहानी में एक और अहम किरदार है, हुर बिन यजीद रियाही। वो पहले यजीद के कमांडर थे। उन्होंने ही इमाम हुसैन को करबला में रोका था, लेकिन जब उन्होंने इमाम हुसैन की बातें सुनी तो उनका दिल बदल गया। उन्होंने इमाम हुसैन से माफी मांगी और कहा, हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? इमाम हुसैन ने कहा, हाँ, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। हुर ने यजीद की फौज छोड़कर इमाम हुसैन का साथ दिया
और पहले शहीद हुए। इससे पता चलता है कि कभी भी सच को मानने में देर नहीं होती। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है। करबला की कहानी में सबसे दुखदाई हिस्सा छोटे अली असगर की शहादत है। 6 महीने का मासूम बच्चा जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, उसे भी नहीं छोड़ा गया। जब इमाम हुसैन ने उसे गोद में उठाकर दुश्मनों के सामने पेश किया और कहा कि इस मासूम को पानी दे दो, तो हुरमुला ने तीर मारा। यह दिखाता है कि जालिम कितने बेरहम हो सकते हैं। लेकिन अली असगर की शहादत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज भी जब लोग उनकी कहानी सुनते हैं तो रो पड़ते हैं। मासूम बच्चे की मौत के आगे पत्थर दिल भी पिघल जाता है। करबला के बाद जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। इमाम हुसैन उस दिन हार गए, लेकिन इतिहास में जीत गए। आज कौन याद करता है यजीद के सिपाहियों को, लेकिन इमाम हुसैन को पूरी दुनिया याद करती है। करबला ने यह भी सिखाया कि कुर्बानी का मतलब सिर्फ जान देना नहीं है। इमाम हुसैन ने अपना आराम, अपना घर, अपनी खुशी सब कुछ कुर्बान किया। उन्होंने दिखाया कि जब मकसद बड़ा हो तो इंसान को हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के जमाने में जब लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं तो उन्हें करबला की याद करनी चाहिए। इमाम हुसैन ने कितनी बड़ी मुसीबत सही, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। करबला की कहानी ये भी सिखाती है कि कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। जब सारी दुनिया गलत रास्ते पर हो तो भी सच के साथ खड़ा रहना पड़ता है। इमाम हुसैन अकेले थे, लेकिन सच के साथ थे। आज भी जब कोई इंसान सच के लिए खड़ा होता है तो उसे अकेलापन महसूस होता है, लेकिन करबला की कहानी कहती है कि सच के साथ खड़ा होने वाला कभी अकेला नहीं होता, अल्लाह उसके साथ होता है। करबला की शहादत के बाद जो मातम शुरू हुआ वो आज तक जारी है। हर साल मुहर्रम में लोग रोते हैं, गम मनाते हैं। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। 1400 साल बाद भी लोग इमाम हुसैन के लिए रोते हैं। उनकी याद में मजलिसें होती हैं, नौहे पढ़े जाते हैं, मरसिए कहे जाते हैं। ये सब इसलिए कि उन्होंने जो कुर्बानी दी वो हमेशा के लिए मिसाल बन गई। करबला की कहानी में एक और अहम बात यह है कि इमाम हुसैन ने कभी बदला लेने की बात नहीं कही। उन्होंने हमेशा सब्र की तलकीन की। यहां तक कि जब उन्हें मारा जा रहा था तो भी उन्होंने अपने मारने वालों के लिए बद्दुआ नहीं की। ये इस्लाम की सच्ची तालीम है। बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। अल्लाह जालिमों से खुद निपटता है। करबला के बाद जो लोग इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेने निकले वो अलग बात है, लेकिन खुद इमाम हुसैन ने कभी बदले की बात नहीं कही। आज की दुनिया में जहां हर जगह नफरत और दुश्मनी है, वहां करबला की ये मिसाल बहुत अहम है। ये सिखाती है कि माफ करना और सब्र करना बदला लेने से बेहतर है। करबला की कहानी का अंत बहुत दुखदाई है, लेकिन इसका पैगाम बहुत उम्मीद भरा है। ये कहानी कहती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। जुल्म चाहे कितना भी हो, इंसाफ आकर रहता है। इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने इस्लाम को बचाया, सच्चाई को जिंदा रखा और आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मिसाल छोड़ी। आज जब हम करबला की कहानी सुनते हैं तो हमारे दिल में सिर्फ गम नहीं बल्कि फख्र भी होना चाहिए कि हमारे दीन में ऐसे हीरो हैं जिन्होंने हक के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। करबला की कहानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है। ये सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का फर्ज है।